Hello everyone. Wishing you all a very good evening. Am I audible and visible to all of you? Yes, sir. Bhavesh, Arusha. Arusha, can you hear me? Okay. Done. So tell me what we were discussing in the last class. What was happening in the last class? Sir, we discussed about the circuits We discussed about the circuits and we discussed about and the its component. and its components. Can you just remind me what were the components that we discussed? What were the components? Sir, cell or a battery, plug, a resistor, ammeter, voltmeter. Great. So you remember a lot of things. Ammeter, voltmeter. What is the use of an ammeter? Sir, to measure flow of current. And how is a ammeter connected? Sir, in a series. In a series. In series. Okay. And how is the voltmeter connected? Sir, it is connected parallel to the circuit. What do you mean by series and parallel? In series, what remains same? What is different? In parallel, what remains same? What is different? The balance may outside the circuit. Did we talk about in series current will remain same? In parallel, potential difference remains same. Did we talk about that? Yes, sir. So in series, if they are connected in series, current is same. If they are connected in parallel, potential drop is same. Yes or no? Yes, sir. Okay. Now let us move on to something which is known as Ohm's law. Ohm's law. Now what is this Ohm's law? Any idea? This I think this topic is already covered in your class. Arusha, do you have any idea what is Ohm's law? Bhavish, what is Ohm's law? So the relationship between current flowing in metallic wire and the potential difference across the wire. Good. That is good. So if I take a conducting wire, let us say this is a conducting wire or a conductor, and I talk about this is the one end of the conductor and this is the other end of the conductor. Now what I'm doing is a current I is flowing through this conductor. A current I is flowing through the conductor. Now remember, when we talk about current or the direction of flow of current, from where to where current flows? If I talk about From positive to negative. from positive to negative, or if I say in other words, current is the flow of the conventional current is the flow of positive charges, and these positive charge always flow from a point of higher potential to a point of Lower potential. lower potential. Now here in this diagram, what do you see? From where to where is current flowing? Current is From flowing from point A to B. point A to B. Now based on the information that you have, can you tell me which point will be at higher potential and which point will be at a lower potential? Sir, I think point A would be at higher potential. Point A would be at higher potential, and Point B at lower. Arusha, do we agree? Do you agree? Do you agree with this statement? You can't unmute yourself, beta. Arusha can't unmute yourself. Okay, no problem. So you can just tell me by raising your hands. Do you understand this? That point A is at a higher potential and point B is at a lower potential?
Okay. That means there is a potential difference between point A and B. Yes or no? Yes, sir. Let me call that potential difference as V. Remember, V is not potential, but it is Potential difference. potential difference. Now I can say this current flowing in the wire I, this current flowing through the wire I is directly proportional to the potential difference V. Is directly proportional to the potential difference V, or I can say I becomes V divided by R, or I can say V is equal to IR, and this becomes what? This becomes the famous statement of Ohm's law. But you must always remember what stands for what. V stands for what? Potential difference. Between A and B. Shabash. What does I stand for? Current. I stands for current on the wire. This R which is left is a constant. It depends on what type of wire it is made of. It depends on the temperature of the wire. It depends on the material of the wire. It depends on the length of the wire. It depends on the area of the wire. We will discuss all that, don't worry. But for a given wire at a given temperature, this R is a constant. And this constant is known as Resistance. resistance of the wire. So V is equal to IR. That is our Ohm's law. R is a constant depending on the type of the wire, its area, its length, and its temperature. For a given wire at a given temperature, this is a constant. This constant is known as the resistance of the wire. V is equal to IR. V standing for potential difference across the wire. I standing for current flowing through the wire. R standing for resistance of the wire. This is known as Ohm's law. Do you understand this? Yes, sir. Can I have some raise hands from everyone that we understand this, sir? Raise hands from everyone that we understand this. All of us have understood this. Bhavish, Chinmay, Arusha has not raised her hand. Arusha. So now we can write just a moment. We can write the statement of Ohm's law. What is the statement of Ohm's law? Write it. What is the statement of Ohm's law? Do you know what is the statement of Ohm's law? Who will tell me what is the statement for Ohm's law? Who will tell me the statement of Ohm's law? Sir, the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference V across its ends, provided its temperature remains the same. Okay. Let me go through this. That is exactly correct. And that is what you see coming on your board just now. According to Ohm's law, remember, Ohm's law is only valid for a constant temperature. If the temperature changes, Ohm's law is not valid. At constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor. I is proportional to V. Do we understand this? Yes, I sir. is proportional to V. This statement
is known as Ohm's law. I is proportional to V. If I is the current and V is the potential difference across the conductor, I is proportional to V. T is constant, or I becomes V by R. I becomes V by R, where I is the current, V is the potential difference, R is a constant which is known as resistance of the conductor, V is equal to IR. That becomes my Ohm's law. V is equal to IR is the Ohm's law at constant temperature. Please remember, at constant temperature. Do we all understand this? Can I have some reason? And please let me know if you have written this statement. According to Ohm's law, at a given temperature, current is directly proportional to potential difference, or I is proportional to V, or I is equal to V by R, or V is equal to IR, where V is the potential difference, I is the current, R is a constant which is known as resistance of the wire. Well done. So far, so good. Now the next heading would be resistance of the wire. So write the red heading, resistance of the wire. That is the next heading, resistance. Have you written this heading? Bhavish, you have not seen the definition? Sir, please show it again. Here comes the definition. Ohm's law. According to Ohm's law, at constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference, or I is proportional to V, or I is equal to V by R, or V is equal to IR. Are we done? You can write the notes in a better way after the class. You can write rough notes now. You can see the lecture. I will post it in your group, in your app as soon as the class is over. You can also write your notes at that point in time. Shall we move again? Yes, sir. The next heading is what? The next heading is resistance. And what is resistance? Let us first write what is the unit of resistance. The SI unit, standard unit of resistance. Everyone knows this. What is this? Ohm. OHM, ohm. And is denoted by the Greek letter omega. This is the symbol for ohm. V is equal to IR. So R becomes V by I. If voltage is 1 volt, SI unit of voltage is volt. Current is 1 ampere. So 1 volt per ampere becomes my 1 ohm. When do I say resistance of a conductor is 1 ohm? If 1 volt of current is passing, if 1 volt is the potential difference and 1 ampere is the current, I will say the resistance of the wire or resistance of the conductor is 1 ohm. Do we understand this? Yes, sir. Can I have reasons from everyone that we understand this, sir? 1 ohm is 1 volt per ampere. How many of you understand this? I hope all of us understand this. 1 ohm is 1 volt per ampere. You can also write it from here. You can also write it from here. 1 ohm is defined as the resistance of a conductor. Up till now, we are calling it a conductor, but from now on, we can also call it resistor. All conductors are registered. If 1 ampere of current flows through it, when the potential difference is 1 volt. Do we understand this?
Raise hand will give me more confidence. 1 ohm resistance is the resistance of a conductor. When 1 volt of potential difference is there and the current is 1 ampere. Do you know what is the symbol of resistor? We have already discussed that symbol. What is the symbol of resistor or resistance? Do you remember this symbol? Yes, sir. This is the symbol of fixed resistor. If the resistance is changing, we can just write it like this. Do you remember this? Yes, sir. Pakka, everyone, please raise your hand that we remember this, sir. Everyone remember this? Well done. Now, whenever we talk about Ohm's law, one thing will always come, and that is a graph between current and voltage. Now, sometimes this graph is between voltage and current. Current is plotted on x-axis and voltage is plotted on y-axis. Sometimes this graph is current is plotted on the y-axis and voltage is plotted on the x-axis. No matter how you draw this graph, it will always be a straight line graph. Do we understand this? Yes, sir. Do we understand this? Here the graph is drawn between V, which is the potential difference on y-axis, and current, which is plotted on the x-axis. The slope of this graph, that means this line, which is V, divided by this line, which is I. V by I will give us the resistance. Do we understand this? Yes, sir. You take 2 points. If you find out the slope, you will get the value of resistance. Am I clear with this? The V versus I graph of a conductor is always a straight line. Got it, everyone? Can you please raise hands and let me know that we have understood this? Arusha, Chinmay, Bhavesh. V versus I graph for a conductor will be a straight line. Arusha, I'm waiting for you. Great. Now, what are the other things that you must remember about resistance of a conductor? We can call it resistor or you can call it resistance of the conductor. Important point. It is denoted by the letter. Resistance is denoted by which letter? R. It is denoted by the letter R. It is denoted by the letter R. What is the SI unit of resistance? What is the SI unit of resistance? Omega. SI unit is ohm represented by the letter omega. Yes or no? Yes, sir. What type of quantity is this? It is a scalar quantity or a vector quantity? Scalar. It is a scalar quantity. Please remember this. Have we noted all these 3 points? Resistance is denoted Just by a second. capital R. SI unit is ohm denoted by omega. Resistance is a scalar quantity. इतनी सारी बात हो गई रेजिस्टेंस के बारे में, इसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इतनी सारी बात हो गई रेजिस्टेंस के बारे में, भाई डेफिनेशन नहीं आई इसके अभी तक। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? ऐसा यूनिट देख लिया, लेटर देख लिया किससे डिनोट करना है, स्केलर है कि नहीं है पता है, क्या इसकी डेफिनेशन हमको पता है? क्या है डेफिनेशन, किसी को पता है? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी को पता है क्या भाई?
किसी को पता है क्या रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है? Sir, may I give it a try? यस यस, बोलना। The ratio of voltage and the current is known as resistance. The ratio of voltage and current is known as resistance. हो सकता है बेटा कुछ बुक्स में you have given it a good try, और कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा हो कि रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। बट ध्यान रखो बेटा, जब भी हम रेशियो की बात करते हैं, whenever we talk about ratio, the ratio is a number, रेशियो एक नंबर है। जब भी हम किसी चीज का रेशियो निकालेंगे तो दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, तभी रेशियो निकलेगा उनका। समझो, मेरे पास एक चीज है लेंथ मीटर और एक चीज है सेकंड, क्या तुम लेंथ और सेकंड का रेशियो निकाल सकते हो? No, sir. लेकिन अब ये देखो, तुम्हारे पास दो पेन है, एक की लेंथ है 10 मीटर, दूसरे की लेंथ है 5 मीटर, क्या इसका रेशियो निकाल सकते हो? दोनों पेन की लेंथ का निकाल सकते हो रेशियो? Yes, sir. 10/5, ये रेशियो निकल सकता है। लेकिन मैं बोलूं भैया एक लेंथ है 5 मीटर और एक टाइम है 5 सेकेंड्स, रेशियो निकालो, निकाल पाओगे रेशियो? नहीं ना। तो रेशियो जब भी निकलता है बेटा सेम चीज का निकलता है। टाइम का रेशियो टाइम के साथ, लेंथ का रेशियो लेंथ के साथ, एरिया का रेशियो एरिया के साथ, वॉल्यूम का रेशियो वॉल्यूम के साथ, डेंसिटी का रेशियो डेंसिटी के साथ, वेलोसिटी का रेशियो वेलोसिटी के साथ। क्या वोल्टेज और करंट दोनों सेम चीजें हैं? No, sir. तो उनका रेशियो निकाल सकता है क्या? No, sir. पर ट्राई अच्छा किया तुमने। बहुत सी किताबों में लिखा है स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम, गलत है। डिस्टेंस लेंथ है, टाइम सेकंड्स है। डिस्टेंस लेंथ है, टाइम सेकंड्स में है। सेकंड्स और लेंथ का रेशियो कैसे निकालेंगे भाई? लोग निकाल देते हैं और बुक में लिख भी देते हैं। बिल्कुल ही गलत कॉन्सेप्ट है बेटा, समझ में आई बात? तो जिस किताब में ऐसा लिखा हो कि वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, उसको फाड़ के सब फेंक देना कुचरे में, ये कचरा है। क्या है वो? कचरा, क्योंकि वो गलत सिखा रहा है। हाँ, V/I है, V/I को हम रेशियो नहीं बोल सकते बेटा। हाँ, यू कैन से इट दिस वे। कैसे बोलोगे? सर वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज रेजिस्टेंस, चलेगा। हम दो चीजों को डिवाइड कर सकते हैं, उनका रेशियो नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो गड़बड़ कौन से वाले टर्म में थी जो तूने यूज किया? Ratio. रेशियो नहीं यूज करना। ये बोल दे सर रेजिस्टेंस इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, मैं बोलूंगा वेल डन। चिन्मय, चिन्मय है ना? Yes, sir. हाँ Yes, sir. Chinmay. हाँ। तो अगर तू ये बोलेगा कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज रेजिस्टेंस, मैं बोलूंगा वेल डन चिन्मय। लेकिन तू ये बोलेगा सर रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, तो मैं बोलूंगा नहीं बेटा गलत है ये बात। जो गलत है वो गलत है, अब तू कितना भी अच्छे से बोल ले वो गलत ही रहने वाला है। आई बात समझ में? सो यू कैन से दिस वे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज रेजिस्टेंस। बट ये बहुत अच्छा तरीका नहीं है किसी इस चीज को समझाने का। ज्यादा अच्छा तरीका तुमको अभी दिख रहा है तुम्हारी स्क्रीन पे, इसीलिए मैंने स्क्रीन को थोड़ा बड़ा किया हुआ था, पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है भाई। अगर ध्यान देते तो ये दिखता इतना बड़ा बड़ा सा। अब दिख रहा है क्या? Yes, sir. क्या दिख रहा है सुना? The property of a current, द प्रॉपर्टी ऑफ अ करंट, a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current through it is called its resistance. द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी थ्रू विच और वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। करंट फ्लो करने की कोशिश कर रहा है पर वो जो बॉडी है वो रोक रही है, नहीं मत फ्लो कर, नहीं मत फ्लो कर, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सिंपल सा वर्ड है, रेजिस्टेंस। वैसे भी सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट के अलावा भी सुना होगा रेजिस्टेंस।
वो आ रहा है, वो नया सीरियल मनी हाइस्ट, उसमें भी रेजिस्टेंस है। जहाँ पे भी कोई अपोजिशन है वहाँ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस एंड अपोजिशन आर द सेम वर्ड, सेम मीनिंग। यहाँ पे हम किस चीज को रेजिस्ट कर रहे हैं? वी आर नॉट वी, द कंडक्टर इज ट्राइंग टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। जहां भी रेजिस्ट है, रेजिस्टेंस है, जहां भी अपोजिशन है, अपोजिशन एंड रेजिस्टेंस आर द सेम। The property of a conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current is known as its resistance। याद रहेगा ये, याद रहेगा ये सबको? Yes, sir. लिख लिया है सबने ये? सबने लिख लिया है ये? सबने लिख लिया है ये? अरे बोलो Yes, हाँ sir. ना। सबने लिख लिया? आरुषा सुन रही है ना कि सो गई? अब नींद आ रही है, बढ़िया सो लेते हैं। चिन्मय तो जाग रहा है। आरुषा सो गई? भावेश? Yes, sir. भावेश तो जाग रहा है। यस सर बोला है उसने, ठीक है। अब वी हैव सीन व्हाट इज रेजिस्टेंस। मैंने बोला था कि रेजिस्टेंस जो है आर कांस्टेंट है, लेकिन बहुत सी चीजों पे डिपेंड करता है। क्या क्या चीजें याद है उनमें से बताओ जरा, इससे पता चलेगा कि तुम लोग कितने अटेंटिव हो Sir, क्लास में। temperature. वाह बेटा, शाबाश। और लेंथ, अरे गजब हो गया। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, शाबाश, शानदार। और 3 चीजें बता दी, वेल डन। तो 12th वालों को नहीं पता होगा इतना। गुड। कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। हाँ, सिल्वर, मटेरियल ऑफ, गोल्ड। गोल्ड इतना महंगा क्यों है? सबसे अच्छा कंडक्टर है बेटा, इसलिए इतना महंगा है, समझा? प्रेशियस भी है, कम भी मिलता है, लेकिन सबसे अच्छा कंडक्टर भी है। सबसे महंगा कंडक्टर चिप में बनाना हो तो गोल्ड और सिल्वर यूज होता है। अब ऐसे ये मत करना कि अपना लैपटॉप खोल के बैठा कि इसमें से गोल्ड और सिल्वर निकाल लेता हूँ मैं, कंडक्टर है अच्छे, बढ़िया गोल्ड और सिल्वर डला हुआ अंदर। डला है तभी तो महंगे हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर तो यस सर। अब अगली हेडिंग क्या लिखेंगे सर? Factors on which resistance depends on, that is the next heading. Factors on which resistance of a conductor depends on। और सबसे पहला फैक्टर क्या अपन यू ले रहे हैं इसमें? इट डिपेंड्स ऑन दी Length. लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ये है पहली हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। के अंदर नंबर 1 फैक्टर है लेंथ। और कैसे वेरी करती है रेजिस्टेंस लेंथ के साथ, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो समझ जाओगे, इसमें और कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कैसे वेरी करती होगी? अगर लेंथ ज्यादा होगी तो क्या होगा? रेजिस्टेंस के साथ बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। Sir, it will increase. बस ये देखो बच्चा, यही लिखा हुआ है पहली लाइन में। पहली लाइन में नहीं, उसके नीचे वाली लाइन में। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। बात समझ में आ रही है? यस, Resistance of a conductor is directly proportional to its length। तो मैंने लिखा R is directly proportional to L। लेंथ को 2 टाइम्स कर दिया तो रेजिस्टेंस का क्या होगा? रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी 2 टाइम हो जाएगा। तो अगर 1 मीटर का वायर है और मेरे पास 5 मीटर का वायर है, सेम बॉडी का बना हुआ, सेम एरिया का, सेम मटेरियल का बना हुआ, क्या होगा? दोनों की रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, ध्यान रहे रेजिस्टेंस का रेशियो निकाल सकता हूँ मैं, दोनों सेम क्वांटिटी है, पर करंट और वोल्टेज का नहीं निकाल सकता। बच्चा समझ में आ रही है बात? तो अगर एक वायर 1 मीटर का है, सेम चीज का वायर 5 मीटर का है, क्या होगा दोनों का रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस? 1:5 का। 1:5। बात समझ में आ रही है? ऊपर से निकलती जा रही है, मैं बातों में निकली। Sir, understood. अरुषा सो गई? सो गई लड़की? जाग रहा है वो तो हाथ खड़ा कर दे, हाँ ऐसे, गुड। तो रेजिस्टेंस
ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। बात याद रहेगी? यस सर। चलो बढ़िया बात है। अगली चीज क्या आएगी भाई? अब टेम्परेचर। नहीं, अगली चीज आएगी एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो मैं पहले तुमको ऐसे दिखाता हूँ ताकि तुमको ये दिखे ना कि एरिया ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करती है। तो ये वाला पोर्शन दिखाऊंगा मैं आपको। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये बात अपन कर चुके हैं। अगला फैक्टर अपन को देखना है इफेक्ट ऑफ एरिया। फिर से दिमाग लगाओ। बड़ा कंडक्टर होगा, ज्यादा बड़ा, छोटा कंडक्टर छोटा सा, क्या इफेक्ट होगा एरिया का? बड़े कंडक्टर की मोटे कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी या पतले कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और क्यों? सर मोटे की। मोटे की क्या ज्यादा होगी? यस सर। क्यों? सर बिकॉज ऑफ मटेरियल यूज इन इज मोर। गधे, मटेरियल यूज इज मोर। चल, रेजिस्टेंस क्या है? पोजीशन है ना, रुकाव। एक रोड है, एक पतला रोड है और एक चौड़ा रोड है। किस रोड पे गाड़ी चलाने में रेजिस्टेंस कम लगेगी? बड़े वाले में। फिर से दूसरा दूसरे तरीके से पूछता हूँ। नदी है, एक पतली सी नदी है, उसके रास्ते में बहुत सी रुकावटें होंगी। एक चौड़ी सी नदी है, उसके रास्ते में भी बहुत सी रुकावटें होंगी। पर किसके, कहाँ पे रिवर का फ्लो करना ज्यादा आसान होगा? चौड़े उसमें या पतले उसमें? सर चौड़े चौड़े में उसमें। ना। मतलब जितना एरिया ज्यादा करते जाओगे उतनी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी ना, क्योंकि उतना ज्यादा स्पेस मिलेगा अपन को घूमने फिरने के लिए। है कि नहीं बात सही? यस सर। अनुषा समझ में आई है? निकल ली ऊपर से, मैं बातों में निकली। सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है भाई। एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। एरिया को 2 टाइम्स कर देंगे तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। आई बात समझ में या ऊपर से निकली, मैं बातों में निकली? आगे समझ में? हाथ खड़े करो सब। एरिया को अगर 2 टाइम्स कर देंगे, एरिया को अगर 2 टाइम्स कर देंगे, यहाँ लिखा भी हुआ है, एरिया को 2 टाइम्स कर देंगे रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी। एरिया को 4 टाइम्स कर देंगे रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगी। आरुषा बात समझ में आ रही है? सो रही है? बढ़िया, सो लेते हैं। बढ़िया भजन चल रहा है यहाँ पे, समझ में तो आ नहीं रहा है, सो लेते हैं, नींद निकलेगी इस बहाने। भावेश सो रहा है कि जाग रहा है? यस सर जयग्राम। लग रहा है। चलो बधाइयाँ हो। ओके, रेजिस्टेंस की बात हो गई। आरुषा ने बोला अंडरस्टूड सर, मतलब जाग रही है, ये बहुत अच्छी बात है। अगला आ गया। अगले किस पे डिपेंड करेगी बताओ भाई, क्या लगता है अगला क्या ले अपन? अगला सर है ये इक्वेशंस को मिक्स करती। अच्छा। इसको मिस कर दूं? अब मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। अलग अलग मटेरियल की रेजिस्टेंस अलग होगी। सम मटेरियल हैव लो रेजिस्टेंस, सम हैव मच हायर रेजिस्टेंस, एंड alloy has higher resistance than pure metals। बात समझ में आ रही है? तो नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टेंस होगी। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। नाइक्रोम, कांस्टेंट एंड इन सब की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए इनका इस्तेमाल, नाइक्रोम का इस्तेमाल, यू मस्ट नो दिस, इज फॉर हीटर्स, टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयन। जो यूज होता है वो नाइक्रोम होता है, बिकॉज की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है।
इसलिए उसको यूज करते हैं हीटर्स में। बात समझ में आ रही है? यस सर। पक्का? यस सर। कुछ बच गया क्या भाई? किसी और फैक्टर के बारे में बात करनी चाहिए क्या? और कोई फैक्टर बच गया? एक और बच गया। क्या बच गया? टेम्परेचर। 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 टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या होगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर? तुम्हें क्या एंड ऑल में सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं ना। क्योंकि यहाँ गर्म हो जाता है, मतलब ऐसे एलॉय यूज करने पड़ेंगे जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, ताकि वो जल ना जाए। अगर बहुत नहीं होगा तो बहुत ज्यादा हीट लॉस होगा उनके अंदर, जितना रेजिस्टेंस होता जाएगा उतना हीट लॉस होता जाएगा और खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, अब क्योंकि हम यहाँ पे आ गए हैं तो अब हम एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। क्या फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाइयों अपन? क्या फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपन? अपन ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अपन ने क्या क्या देखा है रेजिस्टेंस के बारे में? अपन ने क्या क्या देखा है रेजिस्टेंस के बारे में? पहला नंबर पॉइंट अपन ने देखा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यस और नो? यस सर। Resistance is inversely proportional to area. Yes or no? यस सर। Then resistance depends on conductor. Conductor किसका बना हुआ है? And it also depends on temperature. Yes or no? इन सबको यस अगर सर। साथ में लिखा जाए तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ई। सुनते जाना, घबराना नहीं है अपन, सुनते जाना बस। ये आर क्या है? आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये तो पता है अपन को, कोई घबराने वाली बात तो है नहीं इसमें, है कि नहीं है? एल क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर। इसमें भी घबराने, तो क्या होगा? रेजिस्टेंस कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। बस ये चौथे भाई साहब हैं, ये होंगे। सर प्रोपोर्शनल के। तो ये प्रोपोर्शनल के साइन की वजह से आए हैं, बिल्कुल सही बात बोली। और सोचो और दिमाग लगाओ, कुछ बच गया है शायद अभी भी। टेम्परेचर इन चारों चीजों के डिपेंड्स ऑन दिस रो is a constant which depends on its what and its it depends on the type of conductor and its temperature, and this constant is known as resistivity. बात समझ में आई या ऊपर से निकल गई? मैं बात हूं, मैं निकली। ये डिपेंड करता है कंडक्टर और उसके टेम्परेचर पे। अगर कंडक्टर सेम मटेरियल का बना हुआ है, सेम टेम्परेचर पे है, तो ये उस कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगी। ये कहलाती है रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। बात समझ में आई? यस सर। किस किस को नहीं आई भाई बोलो? आरुषा, भावेश, चिन्मय, आ गई है बात समझ में तो हाथ खड़े कर दें भाई। चिन्मय भावेश को तो आ गई है, आरुषा को भी आ गई है। रो, ये पी जैसा लग रहा है, ये पी नहीं है, ये रो है, ग्रीक अल्फाबेट है।
तो क्या बोलते हैं, ऐसा बना सकते हो, ऐसा बना सकते हो, को बोलते हैं रो। पी जैसा दिख रहा है, पी नहीं है, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो। बुक में भी बना होगा, दिखाता हूँ मैं भी तुम्हें बुक का। ये समझ में आया ना? Yes, sir. Yes, sir. देख लेते हैं बुक में कैसा बना हुआ है, क्योंकि मुझसे जो बुक वाला है वो बनता नहीं है, तो मैं ये जो बनता है उससे काम चला लेता हूँ। जो मुझसे बनता है मैं उससे काम चला लेता हूँ। थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई। ये आया। ये बात क्लियर है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, हाँ या ना? Yes, sir. ये बात क्लियर है, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, हाँ या ना? Yes, sir. तो इसका मतलब हो गया आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, हाँ या ना? Yes, sir. तो ये आर की प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह लगा दिए, इक्वल टू बोला था मैंने, इक्वल टू की जगह आता है एक। दूसरा मटीरियल के कारण आता है 2। तीसरा टेम्परेचर के कारण आर इज इक्वल टू रो, ये कहलाता है रो। समझ में आ गई बात? ये सिंबल तो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, पता नहीं क्यों ये ऐसा अच्छा लगता है। बात समझ में आई? चिन्मय को आई, बाकी लोगों को आई कि नहीं आई भाई, बताई बताओ। तीनों को समझ में आई, तीनों को समझ में आई, तो बात अपन ने आगे बढ़ाई। वेयर रो इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। इट डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर। गोल्ड का होगा तो अलग होगा, सिल्वर का होगा तो अलग होगा, एल्यूमिनियम का होगा तो अलग होगा, कॉपर का होगा तो अलग होगा, और डिपेंड करता है टेम्परेचर के कारण। टेम्परेचर बढ़ाने पे यही चीज है जो बढ़ जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है मेटल्स की, सेमीकंडक्टर की कम हो जाती है, मेटल की बढ़ जाती है, और इसलिए उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है? बोलो, का समझ में आई तो बोल दो भाई, नहीं आई तो बोल Yes, दो। sir. अब ये फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। अगर मैं एल को रख दूं 1 मीटर और एरिया को रख दूं 1 मीटर स्क्वायर, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, हाँ की ना? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से हम रेजिस्टिविटी को समझ सकते हैं। इफ वी टेक 1 मीटर लॉन्ग वायर and cross sectional area is 1 meter square, the resistivity of that wire or the resistance of that wire is equal to resistivity। बात समझ में आई कि निकल गई ऊपर से? मैं बातों में निकली, गई गई, जाओ, जा रहा हूँ मैं, जा रही हूँ मैं, गई क्या बात बाय बाय करती हुई? निकल गई भाई ऊपर से, सर एक और बार बता दीजिए। निकल गई ना ऊपर से, तो ऐसा बोल देना निकल गई। इसको रख दिया 1 पगले, इसको रख दिया 1 पगले, तो आर और रो बराबर नहीं होगा क्या? बोल बोल बोल, हुए कि नहीं हुए? Yes, हो तो गए। बस, if we have a wire of 1 meter, area is 1 meter square, then the resistance of that wire is equal to resistivity। बात समझ में आई? बोलो। Yes, sir. किस किस को नहीं आई भाई? आरुषा को नहीं आई ऐसा लग रहा है मुझे। आरुषा कहाँ गई? बात समझ में आई? आरुषा का रेस हैंड है वैसे ही, पहले फिर से कर भाई। होता है वो पिछली बार का हो और मैं समझ लूँ इस बार का है। हाँ, इस बार का भी आ गया भाई। बात समझ में आ रही सबको? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. बस तो फिर ये भी देखते जाओ। अगर इसको और अच्छे से लिखना है रजिस्टिविटी को, तो क्या है रजिस्टिविटी? बहुत सीधा सीधा है। रजिस्टिविटी इज द रजिस्टिविटी इज द कौन कौन पढ़ के सुनाएगा मुझे? पढ़ के सुना दो फटाफट। Resistance offered by a cube of क्यूब a रहने दो, substance. ये बहुत बात है। रजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ, बोलो, अ वायर ऑफ 1 meter length and 1 meter square a cross 1 section area. मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया। शाबाश बच्चे, 1 मीटर स्क्वायर एरिया, दैट्स इट, दैट इज रेजिस्टिविटी। आई बात समझ में? ऊपर से निकली मैं, बातों में निकली।
आ निकल गई। गई निकल गई निकल गई, आरुषा के उससे निकल गई ऊपर से। आरुषा ने का हैंड हमेशा रेस रहता है। भावेश पकड़ में आई, पकड़ में आई। लिखते जा रहे हो ना कि ऐसे ही बकवास करता जा रहा हूं मैं? लिख नहीं रहे तुम लोग, लिखते जाना। अगर कुछ छूट जाए तो बाद में लिखना है भाई, बाद में लिखना है भाई। आखिरी चीज जो आज की क्लास की है वो है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना है, बहुत सिंपल सी बात है। रेजिस्टेंस होती है रो एल बाई ए। बोलो हाँ कि ना? यस सर। यहाँ से अपन ने रेजिस्टिविटी रो निकाल लिया, ए को ऊपर ले गए, एल को नीचे ले आए। बोलो हाँ कि ना? यस सर। Yes. तो रेजिस्टिविटी बन गई। रेजिस्टेंस, ये ए छोटा क्यों लिखते हैं, बड़ा लिखो भाई, एरिया है। मल्टीप्लाइड बाय एरिया डिवाइडेड बाय लेंथ। बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. रेजिस्टेंस का यूनिट है ओम। हाँ कि ना? Yes, sir. लेंथ का यूनिट है मीटर। हाँ कि ना? Yes, sir. एरिया, अरे बड़ा लिख दे भाई। एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। हाँ कि ना? Yes, sir. तो रेजिस्टिविटी का निकाल दो जरा फटाफट, देखें कौन निकाल के दिखाता है पहले। Sir, ohm meter. शाबाश मेरे शेर, वेल डन, बहुत अच्छे। बाकी सब निकला कि बाकी सब सो रहे हैं? अरुषा तो सो ही रही है पक्के से, बस रेज हैंड करके बैठ जाती है। उसने कहा रेज हैंड करके बैठ जाओ, हर सवाल का जवाब एक ही है, रेज हैंड। है कि नहीं? सही बात अरुषा? फिर से हाथ रेस कर दिया, उसने कहा हाथ रेस कर दो। समझ में आए ना आए, कुछ नहीं करना है। रेजिस्टिविटी में ओम लिख देना है, ओम। रेजिस्टेंस के लिए, एरिया के लिए लिख देना है मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर। भावेश है कि नहीं है? ये निकल लिया? मैं भावेश हूँ कि यस निकला? सर। हाँ, डिवाइडेड बाय लेंथ की जगह मीटर, मीटर मीटर कट गया। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बन गया ओम मीटर। फॉर्मूला नहीं बना भाई, गलत बोल गया मैं। क्या बना? यूनिट बना। ये हो गई इसकी एसआई यूनिट, ओम मीटर। आई बात समझ में सबको? यस Yes. सर। बस आज की कहानी यहीं तक। क्या क्या पढ़ा हमने आज, शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या पढ़ा अपन ने आज। Sir, एक क्वेश्चन है। पहले पे को अपना खत्म तो कर लेते कार्यक्रम। क्या क्वेश्चन है तेरा? ये बोल। जो रो है इसमें टेम्परेचर का तो कुछ अपन ने बात करी नहीं। मैंने बताया ना बेटा, जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब रो रो टेम्परेचर के बढ़ने से रो बढ़ जाता है, इसलिए रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। उसका फॉर्मूला अभी तेरे को अभी नहीं है, वो 12th स्टैंडर्ड में है। रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला है टेम्परेचर के साथ, और रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला है टेम्परेचर के साथ। वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है ना? ओके सर। चाहेगा तो बता दूंगा। चल अब तूने पूछ लिया है तो बता ही देता हूँ। पहले अपन ये सब करेंगे सभा समाप्त करने के बाद। अपन सभा समाप्त करने से पहले देख लेते हैं अपन ने क्या पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा है अपन ने? बोलो फटाफट, क्या क्या पढ़ा है आज? सर ओम्स लॉ। सबसे पहले पढ़ी अपन ने ओम्स लॉ। क्या पढ़ा अपन ने ओम्स लॉ में? Sir, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference I is across directly the proportional conductor. to V, V is equal to IR, V is potential difference, I is current, R is the resistance of the wire। फिर अपन ने पढ़ा V और I का ग्राफ कैसा होता है। V और I का ग्राफ एक कंडक्टर के लिए स्ट्रेट लाइन। Straight. स्ट्रेट लाइन। फिर अपन ने देखा, शाबाश बहुत सही जा रहे हैं अपन। फिर अपन ने देखा रेजिस्टेंस। क्या होती है रेजिस्टेंस भाई, बताओ डेफिनेशन क्या थी रेजिस्टेंस की? So, a property of conductor by virtue of which it opposes the flow of electric current. शाबाश, बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आरुषा अपन है कि नहीं है? निकल लिए? मैं आरुषा हूं, मैं निकली, निकल ली। देख मैंने बोला था निकल लेगी ये है। देख उसका रेज हैंड नहीं आया, मतलब निकल ली, उन्होंने कहा चुपचाप से निकल लो। अच्छा है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो मजाक कर रहा था। ओके, फिर हमने देखा रेजिस्टेंस किस किस रेजिस्टेंस के बारे में हमने कुछ कुछ चीजें पढ़ी। किस टाइप की क्वांटिटी है रेजिस्टेंस, स्केलर या वेक्टर? Scalar. शाबाश। स्केलर। ऐसा यूनिट क्या है? ओम। Ohm. वेरी गुड। किस से डिनोट करते हैं, किस लेटर से डिनोट करते हैं? ओमेगा। Omega. सिंबल क्या है? खिच 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 खिच,
जैसे खिचखिच बन गया, समझ में आ गया कि अपोजिशन है, खिचखिच खिचखिच। ओके, किस किस चीज पे डिपेंड करती है रजिस्टेंस, फटाफट बताओ। टेम्परेचर, लेंथ अबे ऑफ Length, सबसे पहले cross बोला था गधे। section, लेंथ, डायरेक्टली cross प्रोपोर्शनल, section, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डिपेंड्स ऑन conductor and temperature. कंडक्टर एंड टेम्परेचर। उन दोनों के लिए कौन सा सिंबल आया? रो, रो। Rho, क्या कहलाता है रो? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की resistivity डेफिनेशन of देखी थी। material. रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, क्या डेफिनेशन है? रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज द resistance of a conductor whose length is 1 meter, and area is 1 meter square. इतना याद रखना है, इतना काम अपन करेंगे। अगली क्लास में अपन इसके सवाल भी देखेंगे। बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, बात समझ में आ गई अब, क्योंकि इस लड़के ने पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था इसने? क्या पूछ लिया था कि सर इसमें टेम्परेचर की बात तो की नहीं अपन ने। यस सर, देख ले टेम्परेचर की बात, तुझे बहुत शांति मिलेगी। रो एट एनी टेम्परेचर T2 is equal to, या ठीक है, रो एट टेम्परेचर T बोल देता हूं मैं। रो एट एनी टेम्परेचर T विल बी इक्वल टू रो नॉट। रो नॉट की वैल्यू मतलब एक दूसरे टेम्परेचर पे इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T माइनस T0। T0 है लोअर टेम्परेचर, T है हायर टेम्परेचर। अगर मैं T0 को बोल दूं टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस और T को बोल दूं टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो फॉर्मूला कैसा बन जाएगा? ये रो एट 100 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, बोलो, रो 1 प्लस अल्फा रो इंटू 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 1 प्लस अल्फा 100 माइनस 0। बात समझ में आई? यस सर, ये अल्फा एक नया टर्म है, ये कहलाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस। ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है, फिर भी तूने पूछ लिया था इसलिए बता रहा हूँ। सिमिलरली एक फॉर्मूला बन जाता है रेजिस्टेंस का, सेम टू सेम फॉर्मूला है। रो की जगह आर लिखना है, आर एट टेम्परेचर टी। क्या फॉर्मूला बनेगा आर एट टेम्परेचर टी का, बताओ? आर नॉट 1 शाबाश, प्लस अल्फा शाबाश, टी शाबाश। माइनस टी टी माइनस टी नॉट। नॉट। बात समझ में आई? अगर मैं एक टेम्परेचर को बोल दूं 100 और दूसरे टेम्परेचर को बोल दूं 0, तो क्या फॉर्मूला बनेगा बता? बिकॉज रेजिस्टिविटी इज द टेम्परेचर। यस सर। सर एक और क्वेश्चन बस, ये जो टेम्परेचर है ये कौन सी उसमें लेना है? कोई सी भी यूनिट में ले ले, SI कोई फर्क, तो? कोई भी डिग्री सेल्सियस केल्विन किसी में भी ले ले यहाँ पे, क्योंकि डिफरेंस इन टेम्परेचर है बेटा। डिफरेंस इन टेम्परेचर से फर्क नहीं पड़ता। बस अगर ये डिग्री सेल्सियस में है या केल्विन में है, तो अल्फा भी डिग्री सेल्सियस या टेम्परेचर वाला होना चाहिए। अगर ये फ़ारेनहाइट में है तो अल्फा भी फ़ारेनहाइट में होना चाहिए। बस इतना अंतर देखो। नॉर्मली ये डिग्री सेल्सियस में होता है या केल्विन में होता है, फ़ारेनहाइट वाला नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, यस सर, एनीथिंग एल्स? थैंक यू सर। चलो बढ़िया, ऐसे सवाल पूछते रहो तो मैं तुमको ऐसे जवाब देता रहूंगा, शायद तुम्हारे काम में आ जाए। ये अगर क्वेश्चन तुम्हारे उसमें आ गया, किस में आएगा? एनटीएससी एग्जाम में आ सकता है, एनटीएससी एग्जाम में भी नहीं आ सकता है। एनटीएससी का जो फाइनल एग्जाम होगा, जो नेशनल लेवल का एग्जाम होगा, उसमें शायद आ सकता है, उसमें शायद आ सकता है, उसमें ऐसी चीजें आती हैं। खैर, आज की कहानी यहीं पे खत्म। मैं ये वीडियो डाल देने वाला हूँ तुम्हारी ऐप में, उसको देख लेना। ये शीट डाल देने वाला हूँ, सबके नोट्स बने होना चाहिए, क्योंकि मैं नोट चेक करवा लूंगा। कभी भी नोट्स नहीं निकले तो फिर मार पड़ेगी और कुछ नहीं होगा। ठीक है, किसी को डाउट हो? आरुषा, सबको समझ में आया बेटा? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो अपनी क्लास आज खत्म। किसी को भी डाउट हो ग्रुप में डाल देना, मेरे को जैसे ही मौका मिलेगा मैं सबसे पहले ग्रुप देखता हूँ और उसका रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, चलो, आई विल वाइंड अप टुडेस क्लास हियर। एंजॉय। सैटरडे को मिलेंगे फिर से अपन, होता है उससे पहले भी मिले, बट अपन जब कोई भी चीज कर रहे हैं अपन फुल प्रूफ कर रहे हैं उसको। ठीक है, चलो, बाय बाय।